मायावती का बड़ा मजा रहता था, मीटिंग चल रही उसी में डीएम को सस्पेंड कर दिया, कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। Merely being upright doesn't help. Just being upright, you'll be kicked around. ठेके पे उठते थे कॉलेजेस नकल कराने के लिए। Most horror I found that the mafias of school education were worse than mafia of coal. जब कल्याण सिंह दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, कहते हैं मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें ये याद है? उनको याद था। How you make peace with yourself when you आपने देख लिया है कि इतना deep rooted हो रहा है। आजकल हलवाई लोगों ने भी यूनिवर्सिटी खोल ली है, जूते बनाने ने यूनिवर्सिटी खोल ली है, सिगरेट बनाने वालों ने यूनिवर्सिटी, पान मसाला वालों ने एजुकेशन में आ गए। ब्यूरोक्रेट्स आर पेड नॉट टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू बी ऑनेस्ट, दे आर पेड टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड। What does it take to remain honest in a world that doesn't always reward honesty? Welcome to the Living Pod. I'm your host and host Saurabh Arora, and today I have the privilege of talking to a man who lived that question that I asked in the beginning as a practitioner. Mr. Anil Swaroop is a former IAS officer of 1981 batch. He held some of the most critical roles in Indian government: education, coal, labor, health. He authored books like Not Just a Civil Servant and the Ethical Dilemmas of a Civil Servant. And he built a reputation for doing one thing that's actually quite rare, which is getting things done cleanly. Today, he's the founder of Nexus of Good, a platform dedicated to bringing good people and good work together. But this conversation isn't only about public life. It's about integrity, bias, leadership, and what it means to be helpful to your team, your work, and to yourself. Mr. Swaroop will tell you about how honesty alone is not enough. Driver, you have to know the people you work with. I'm looking forward to this one. I think you will too. If this kind of conversation is your thing, hit that subscribe button below, give it a like, and forward it to one person who needs to hear this today. Let's get into it. Why you so upright? It's the most important, most toughest thing to be upright, the way you are being in last 40 years or more than that. You know, I'm a very practical man. I found it useful. Very useful in the sense, if I'm upright, I am what I am. I don't have to make up anything. It's tough to be upright. No, it is tough to be not to be upright also. Both ways. Agree. So if you're upright and people understand you as upright, they take you as an upright. So let me explain this to you further. Please. In the first few years of my career, I had a lot of problems. In the second half of my career, no one ever asked me for anything that was considered wrong. Right. Not only illegal, wrong even. No one. I held very sensitive assignments. Secretary Coal, Secretary Education. No one. I don't recall anybody. लोग हमसे पूछते हैं, आपके वो pressure नहीं है? हमने कहा, आया नहीं. And that's where uprightness. But merely being upright doesn't help. There are few other attributes that one has to develop if one has to lead a peaceful life. Just being upright, you'll be kicked around. You have to be efficient. If you're not efficient and just upright, then you will be in trouble. You have to be able to deliver things on the ground as a civil servant. You can't just be upright and say that I am upright, I won't do this, I won't do that. No. One has to be very clear in one's mind. Bureaucrats are paid not to be honest. They have to be honest. They have to be upright. They are paid to deliver on the ground. And if you're just honest or just upright, you will reach nowhere. You'll be kicked around. And that's why you have to develop those efficiency norms that you have. You have to develop as an efficient officer, then you will be wanted. So, the cost of for you being upright is you need to be efficient. That's not a cost. That's not a cost. That's a benefit. Okay. If you are efficient, people would want you. What is the cost? Agree. I mean, yeah. I mean, you don't pay a price to be inefficient. Right. You might pay a price just to be honest or just to be upright. Right. But you will never pay a price to be efficient. So efficiency, there's no value, so to say, that you have to pay a price. No. In order to become efficient, you may have to pay a price. Because you have to be diligent, you have to understand, you have to appreciate, you have to be receptive. Uncontent also at time, like when you try to be efficient, you know, then you're like, इससे 12 अप्रैल निकल गए, पर यार 14 भी निकल सकते थे. And no, then that's mostly you are always been uncontent and not happy. No, I don't think so. What you do is, you are happy with what you have.
And that's a very important attribute that an individual should have. Yes. But you have aspiration to become better. So you're continuously improving. You're not discontented. But people around you, I mean, I guess one tenant I can relate is when you're always trying to improve and push your people, they don't like it because change management, friction. So it's a question of how do you define it. I never defined it as pushing people. During my career, especially during the second half of my career, I used to understand my team. Because every individual requires a different sort of a, I use your word, push. Yes. Push may not be true for everyone. Treatment or... So it's how you conduct yourself, how you conduct with your team members. You can call it push on occasion. Sometimes you have to push. But I don't think generally using the term push would be correct. It can be inspiring. With some people, you don't have to push them at all. If you give them with clarity what you want, they will do it. You don't have to push them. Some others, yes, you may have to push them. So there is no general principle of making things happen. You have to understand the people around you, understand in the context of what gets them going. General management principles may not apply to everyone. It is so different for each individual, and that's why in all my assignments in the initial period of my existence in those assignments, I tried to understand the people with me. I spent a lot of time sitting with them, sipping over a cup of tea, trying to understand what are his problems. The whole bottom line was how to get them moving. And in that I discovered that every individual is very different. Totally. And require a lot of time with your team. Totally. In fact, मुझे अभी भी बहुत time लगता है. I'm not very... I always believe there's nothing black and white. It's always a gray. Absolutely. You need to choose how much whitish you are towards. Absolutely. But मेरा जो बचपन के thought है या जो भी condition हुआ वो ये है कि यार अगर आपको अपने दोस्तों के सामने, लोगों के सामने, if I for the longest time we read that read everyone equal. Now I'm like सबसे बड़ा flawed है. If you're reading everyone equal like you need to manage different people differently in different situations. So I'll tell you, my understanding of equality is that I will treat them objectively. I will not treat them with a bias. That's my understanding of equality. Each individual is different, but I don't have to be biased on account of caste, color, community, region. If I am biased, there is a problem. To that extent, I treat them equally. But bias is आता तो है as a human being. What do you do but not to the be point biased? is, as you rightly said, there are no blacks and whites here. They're greys. So can I become whiter in that or darker in that context? Can I improve myself? So I may have a bias, but can I attempt to overcome that bias? But what do you do in that position? Let's say you must have seen me. You must have a certain perception because human mind है ना. फिर उसको आपने और समझा होगा, फिर उसे ऑब्जेक्टिव किया होगा. अब तो मुझे नहीं होती समस्या, पहले होती थी. अब तो मैं जो मुझसे मिलता है मैं पहले उसे ट्रस्ट करता हूँ, पहले मुझे अच्छा समझता हूँ. पहले जरूर होता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I had biggest problem with netas, politicians. I've written that in my book, Politician. Right. The problem was not with the politician. Problem was with me. Because any politician who walked into my room, I said, इसका कुछ गड़बड़ एजेंडा है. Which is not wrong. होगा, कुछ केस में होगा. Many cases he coming merely to tell him what is the problem on the ground. So why should I be biased? This is something which I introspected over a period of time. And I became peaceful myself. I said, why am I biased against this politician? जैसे होता है ना, अरे ये तो पंजाबी है, अरे ये तो मद्रासी है, अरे ये तो बिहारी है. ये हमारे... That is wrong. Because each individual is different. He may carry some of the traits of the region, but to be biased, I'm doing harm to myself. मैं तो बहुत selfish आदमी हूँ. मेरा किसमें लाभ होगा मैं सोचता. मेरा लाभ उसी में होगा अगर मैं biased नहीं होऊंगा. That's my selfish way of looking at it. If I'm biased, ultimate loss will be mine. बट आप कैसे इस चीज को डिटैच करते हो? क्योंकि बड़ा सिंपल है इसका. शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगता था, बड़ा सिंपल लगता है. जैसे मैंने कहा, मैं सेल्फिश आदमी हूँ. मुझे किस में लाभ होगा? मैंने यहाँ से शुरू करते हैं. Will I be benefited by being biased? If I'm benefited by being biased, I'll continue to be that. If I see the benefit by not being biased, it's a very practical approach. It's not an idealistic approach कि सबको एक मानो, सब समाज, सब भगवान के ये हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह पर. मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ. मैंने जहां बायस किया, अल्टीमेट नुकसान मेरा है. मैं अगर ऑब्जेक्टिव हूं तो मैं फिर भी एसेस करके ये कह सकता हूं ये ठीक है, इसमें ये नहीं है. बायस से आई हैव अ ब्लिंकर्ड विजन. आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल्स विद अ कलर, सो आई एम अनेबल टू असेस. अल्टीमेट नुकसान किसका? मैं उसको काम ही नहीं करा पाऊंगा. अरे अच्छा ये बंगाली है,
अरे ये मद्रासी है, ये बिहारी है, अच्छा ये इस कम्युनिटी का है, अच्छा इस कास्ट का है, तो उसका किसका नुकसान हो रहा है? वो तो जो है वो है, वो उसी कास्ट का होगा, उसी कम्युनिटी का, उसी रीजन, उसका कुछ नहीं बिगड़ना बन, मेरा बिगड़ जाएगा, बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट इंडिविजुअल. एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, माई जॉब इज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. I cannot get the best out of him if I'm biased. एक layered question, हाँ. personal question इसी में. Let's say you've been traveling, you've been meeting people, getting information, you're reading, you know. Not that I'm not saying that the person is superior, but I'm saying just the role is giving them opportunity to be more evolved, more read, and they have more information, more context. And when they meet with the team or anyone, you are like यार मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं है, राइट? एंड दैट अदर पर्सन might have lots of experience, whatever, but in that point they probably have less context, less preparedness, and then होता है ना कि the other person will say यार भाई मैंने भी पिछले 20 साल काम किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है. लाइक कि ऑब्जेक्टिव, मैं आपको ऑब्जेक्टिव ट्रीट करना चाहता हूँ, बट इस कॉन्टेक्स्ट में I believe I went through that. Yeah. When I joined the IAS, होता ना जैसे आप IAS में आ गए तो आप बड़े तोप हैं ना. शुरू में समझता सब जानता हूँ, ये भी जानता हूँ. ग्रेजुअली रियलाइज कि मैं जानता हूँ, उसकी जानकारी उस कॉन्टेक्स्ट में, मेरा चपरासी है जैसे, या मेरे जो पीए है, राइट, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसकी जानकारी, उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी जानकारी नहीं है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैनेजमेंट सिस्टम्स इज टू डिफाइन रोल्स. इफ यू डोंट appropriately define roles, we'll have conflict. He has a particular role in that particular domain where he is the boss. I may have a different perspective. It is the conflict arises when I say, no, you don't know, I know. That's where the problem is. You must appreciate the role that a person can perform in a particular segment. There could be a problem there. Then I will have to convince him into believing that there is this problem. Come, let's sit down and discuss whether you'll feel slightly more fulfilled by following what I'm telling you. So if you've read my book, you can make it happen. There is something called emotional relatability. You know, I've defined 8 dimensions. It's easy to have an idea in a country like ours, in a democracy, but to make things happen, the idea has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable, and environmentally sustainable. Of these 8 dimensions, an important aspect is emotional relatability. What is emotional relatability? And that probably will answer your question. Emotional relatability is my ability to convince you that what I am telling you is beneficial to you. Right. That's the key. No matter how or which position you occupy, the idea will happen and sustain if the person who's asked to implement that idea accepts that idea as beneficial to him or to his organization. Agree. If he is able to relate to that idea, that is called emotional relatability, that what my boss or my colleague or even my subordinate is telling me would benefit me or my organization. You've cleared the issue. So that's where there is a need to appreciate that individual and communicate your ideas in a manner that you impress upon him that what you are telling him would be beneficial to him or his organization. So if you know that this is his role, this is what he does, you know or you come to this conclusion that he is not so good as he should be, the question then is, how do I communicate to him that he's not as good as he thinks he is? It's very important. Yes, agree. One way I've seen many bosses sitting around and shouting at others, in meeting, in everyone. 10 people. That's the worst thing that they can do. Brings them in the estimation of others. You know, after my initial wrongs that I did, I never shouted anybody in a meeting. Never. मुझे उसे डांटना हो अकेले बुला के जो जितना झाड़ लो, publicly नहीं डांटते थे. Now it's a very small thing, but if he goes down in esteem and in esteem of others, then his output will be impacted. So the point that I am trying to make here is, you have to understand the people that you're working with. I mean, as you rightly said in the beginning, no one is equal. You may be intellectually more sound than I am. I may have more experience than you're intellectual. Now, both are useful. Yes. Once you appreciate the utility of some of the qualities of people around you, you'll never fight with them. I used to fight with everyone. I used to argue. जैसे मैंने कहा ना,
IAS में आने के बाद लगता है कि हम तो बहुत तोप हो गए हैं ना, अब वो हमसे बड़े बड़े लोग हैं, इतना अनुभव है, ग्रेजुअली लाइफ में कर क्या रहा हूँ, सबसे लड़ रहा हूँ. Initially I used to fight with everyone and get transferred. Okay. And then I realized, what is my objective? My objective is to prove a point or do my work. Most of the cases I am trying to prove my point. And I fight with everyone. Bottom line क्या है? जैसे हमारे यहाँ सर्विस में कई लोग होते हैं, इसके तो 40 ट्रांसफर हुए हैं, वो हीरो बना हुआ है. मैंने कहा भैया काम कितना किया, हीरो बनने के लिए सर्विस में थोड़ी ना आता है. बस एक चीज समझ लेनी चाहिए कि पूरा समाज अभी नहीं बैठ गया है. एक ये भी समझ लेना चाहिए कि हर आदमी करप्ट नहीं है. दे आर आउटस्टैंडिंग पीपल. I mean, I started a movement called Nexus of Good just to bring good people together. They are outstanding people. अब खराब भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, खराब आदमी में भी अच्छा ही है. उसमें मैं थोड़ा डाइवर्ट कर जाऊँगा इसमें. उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, उसमें कुछ और हर चीज़ का प्लस माइनस होता है ना, कैसे परसीव. कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार दैट्स योर वे टू probably charm your colleagues and get that. There's no harm in charming. What is the harm in charming your colleagues? मुझे काम कराना है यार, मुझे लड़की की शादी थोड़ी ना करनी है. भाई बात नहीं समझते. आपको मैं I'll just give you an example. Please. I had the occasion to work as special secretary to Mr. Kalyan Singh, and then Mayawati became the chief minister. I became her special secretary also. मुझे अभी तक नहीं समझ में आया क्यों मुझे बुलाते थे. मैं तो बहुत मुंह फट था, बहुत रख लेते थे मुझे. अब क्या हुआ, मायावती का बड़ा मजा रहता था. मीटिंग चल रही है, उसमें डीएम को सस्पेंड कर दिया. अबे डीएम यार बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, मीटिंग में सस्पेंड कर दिया. उनको मजा आता था, कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया. अब उसको कैसे हैंडल करें. मायावती जो है वो तो है. तो एक दिन एक डीएम को सस्पेंड कर दिया और रोता हुआ मेरे पास है, सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी. उसने बताया मुझे वाकई कोई गलती नहीं थी. अब माई क्वेश्चन वॉज हाउ डू आई गेट हिम रीइंस्टेटेड, राइट. सो व्हाट डू आई डू. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व मायावती, और आई विल से वी यूज्ड टू ऑब्जर्व, पूरी टीम थी हमारी. और हम ये देखते थे कि सुबह के टाइम पे जब वो ब्रेकफास्ट करती थी सबसे खुश रहती थी, पालती मार के बैठती थी. सुबह बड़ा कुछ करा लो उस समय उनसे, तो हम लोग उस समय कराते थे जो कराना. तो सुबह मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं गया कमरे के अंदर, ब्रेकफास्ट कर रही थी, बड़े अच्छे मूड में थी. अनिल क्या हाल है. मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम. फिर थोड़ी इधर उधर की बात हुई. मैंने कहा मैडम वो आपने डीएम को सस्पेंड कर दिया, गलती हो गई उससे, बड़ा अफसर अच्छा है. अब कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तुम्हें तो पता था उसकी गलती नहीं है फिर भी तुम उसकी गलती कर. मैंने कहा भैया मेरे, अगर मैं उनसे कह देता कि उसकी नहीं आपकी गलती थी तो मैं भी सस्पेंड हो जाता है ना. मुझे काम कराना था भाई उनसे. फिर उन्होंने कहा अरे अच्छा अफसर है तो गलती कैसे हो गई. अब देखिए मैंने कहा मैडम किसी से भी गलती हो सकती है, उससे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है. मैंने कहा नहीं आपसे हो सकती है. तो ये आपको समझना चाहिए किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है. अब आप कहेंगे वो चार्म कर रहे थे, अरे ठीक है चार्म कर रहे थे, काम कराना है यार मुझे. तो मैंने कहा हाँ मैडम किसी से भी गलती हो, अच्छा अधिकारी है. मैंने कहा ठीक है कर दे बहाल. 1 मिनट के अंदर दैट ऑफिसर वाज रीइंस्टेटेड. नाउ द क्वेश्चन हियर इज आई कैन कीप क्रिटिसाइजिंग टिल काउज कम होम कि उन्होंने गलत किया, ये किया. पुराना अनिल स्वरूप होता ना, तब तक तो मेरे हो गए थे मुझे 12-13 साल. पुराना अनिल स्वरूप भिड़ लेता जाकर उनसे कहता मैडम उसको तो गलत सस्पेंड किया. क्यों उसी क्यों. मैंने कहा मैडम उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मुझे भी सस्पेंड कर देती या मैं ट्रांसफर होकर चला जाता. कई लोग होते ना हम ट्रांसफर होकर चले, मैं भी ये करता था. फिर भिड़े कि अच्छा मुझे छुट्टी दे दी. मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैं अपनी जेब में चिट्ठी लेकर घूमता था, मुझे छुट्टी दे दीजिए. सी यू कांट क्रिएट दिस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. You can't even change them, but you can change yourself. Agree. If you change yourself, you will get the best out of the set of circumstances. I learned it the hard way. मतलब जो आप आज देख रहे हैं, this is a finished product. Evolved product है. हाँ, शुरू में मैं खूब लड़ता था सबसे, खूब सीखा, खूब लात पड़ती थी, खूब ट्रांसफर होते थे. मेरे भी वही स्थिति होती कि अरे ये देखिए कितने बढ़िया अधिकारी, इनके 85 ट्रांसफर हो गए. अरे भाई मैं क्या पाता. किसी लोग मुझे मार्टर के रूप में जरूर इंटरव्यू करते. अरे आपसे ऑनेस्ट अफसर तो हुआ ही नहीं है, आपको तो बड़ा शायद अन्याय किया समाज ने, इसने किया अन्याय, तो क्या कर लेंगे यार अन्याय के. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ. राइट. I mean, each one has to decide what he wants in life. I mean, I decided that I'll do things. मेरी आज भी आदत है रिटायरमेंट के बाद कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए. कहाँ से आ रहा है ये दैट एनर्जी, पैशन, कुछ करना होता ना कि सम पीपल है कि यार हमने IAS किया, अपनी फैमिली को, बच्चों को सेटल किया, खुद सेटल हुए, लोग हैं तारीफ भी करते हैं, बुलाते भी है, फैसिलिटेट भी करते हैं, अभी भी दैट टू डू मोर, वेयर दिस कमिंग फ्रॉम. यार अच्छा कोई आदमी कोई चीज़ क्यों करता है, ये छोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ क्यों करता. आपके साथ हूँ मैं, या तो उसे अप्रिशिएशन मिले, नहीं अप्रिशिएशन छोड़ दीजिए, पैसा मिले, कुछ नहीं यार, उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगे. हाँ बेसिकली अच्छा लगता है, पैसे से अच्छा लगे, अप्रिशिएशन से अच्छा लगे, उसको अच्छा लगे. मुझे मजा आता है. कोई मुझसे पूछते हैं साहब आप क्या है, अब तो रिटायर हो गए, आपको नेटफ्लिक्स देखनी चाहिए, आप घर पे बैठ के क्यों 20 दिन ट्रैवल करते हैं आप. मैंने मजा आता है मुझे बच्चों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में. आई गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम.
With you, totally. भाई क्या है कि आज तो मेरे पास चॉइस है। जब मैं सर्विस में था कई ऐसी चीजें करनी पड़ती थी, जैसे आप पार्लियामेंट कमेटी में जा रहे हैं, एमपी से बात करना, आपको पता है इसका कुछ निकलना नहीं है, बैठे हुए वहाँ पर, तो वहाँ तो चॉइस नहीं थी। उसका मैं दूसरा तरीका निकालता था एंटरटेनमेंट का कि कैसे अच्छा। मेरा हमेशा फिलॉसफी रहती थी कि यार जो चीज़ आप कर रहे हो वो अच्छी लग जाए तो मज़ा आ गया, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप करते हैं। जैसे रिटायरमेंट को तो हम वही करते हैं जो अच्छा लगता है। जैसे आप इन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए पॉडकास्ट कीजिए, मुझे कुछ ठीक लगा, इनका अप्रोच अच्छा लगा, मैंने कहा चलो चलते हैं, टाइम निकालेंगे इस तरीके से। अच्छा लगा, नहीं कर लेते तो मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है, मुझे वोट भी नहीं देती, है ना। तो अब है, लेकिन सर्विस में मैं क्या करता था, मैं छूटता था। जैसे अगर नहीं मजा आ रहा है तो कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू देखता था। अच्छा ये देखो पार्लियामेंट में कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है, ऑब्जर्व करते थे चीजें। आप अपना तरीका खुश रखना है, अपने खुश, और ये आपके ऊपर, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हैप्पीनेस इज टोटली सब्जेक्टिव एंड इट्स वेरी इंडिविजुअल। अपने ऊपर है, आप प्रसन्न रहिए, गुस्सा रहिए। अगेन दिस इज एन इवॉल्व्ड एनालिसिस, आई लर्नड इट द हार्ड वे। इनिशियली मैंने, बट कहाँ हार्ड वे, लाइक कई, अच्छा यू हैव फैमिली। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये फिल्मों में होता है कि रात को सपना आया और सुबह आदमी ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ आप सीधे थोड़ा पिटते हैं, उठते हैं, फिर पटकते हैं, फिर उठकते हैं, धीरे धीरे आप सीखते हैं। आई हैड दिस हैबिट, ये कहाँ से मैं नहीं कह सकता, आई हैड दिस हैबिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एवरीबॉडी। बचपन से मुझे सबसे सीखने में मजा आता था। मेरे फादर वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, जो आप आज पहले कह रहे थे ना। आई हैव नेवर एवर बीन लेट टू अ मीटिंग, 38 years ऑफ करियर। तो मेरे फादर का था, वो भी पंक्चुअल थे, बिल्कुल एकदम टाइम। मेरे अंकल थे, ही वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, तो मैंने उनसे स्पोर्ट्स सीखा। मेरा एक मित्र था, उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, मेरी खराब थी, तो मैं देखता था यार ये कैसे लिख रहा है, मैंने भी सुधार ली। फिर एक और मित्र था, वो किताब लिए के चलता था, मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने कहा तुम पढ़ते नहीं हो यार किताब? बोले बॉस जब मैं खाली होता हूँ, जब कोई नहीं होता मैं पढ़ता हूँ। मेरे दिमाग में बात बैठ गई, आप विश्वास कीजिए, एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई वाज रीडिंग 100 books a year, क्योंकि जो भी खाली होता तो मैं किताब पढ़ता था। कार में बैठा हूँ किताब पढ़ रहा हूँ। तो वो एक आदत पड़ी अपनी वाइफ से, मैंने सीखा कि वो सिर्फ उन चीज़ों से परेशान नहीं होती जिन पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल नहीं परेशान होती। मैं बहुत परेशान होता था पहले, एक किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाऊं तो मैं बहुत एजिटेटेड हो जाता था। एक दिन वाइफ चल रही साथ में, मैं फिर एजिटेटेड हो गया। ये क्या हो गया? मैंने कहा ये ट्रैफिक। उन्होंने कहा तुम उसका कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जब कर नहीं सकते तो खून क्यों खोला रहे हो? छोटी चीज। I mean, मैं समझता था आई एम द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ऑन अर्थ, है ना। When I got married, I found a person who is more organized than me, so I learned from her. So you can learn from anybody. My children, I'm learning from them. I mean, I could hardly spend time with them because of my career. Now I'm trying to make it up with my grandchildren. आप देखिए, my children never ever asked me for something which was available with the padosi and not with us. My first air conditioner in my house came after 17 years of service. मेरे सब पड़ोसियों के बाद एसी था, बट मेरे बच्चों ने आज तक कभी नहीं पूछा। I learned it from them. जो है ऐसा क्यों? आपने शुरू से ही वो पता नहीं, देखिए ऐसा कुछ चीजों का मुझे कारण बच्चों ने देखा होगा ना कि जो भी देखा हो, मतलब यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग। और बहुत ज़्यादा टफ है ना कि यार साथ वाले आईएएस या साथ वाले आईपीएस के बाद गाड़ी भी आ रही है। See, I am fortunate that I had children. Probably my wife had a role to play. जैसे मैंने कहा, मुझे तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं बच्चों के साथ। मैं तो अपना रात में थाने में, हम तो हमारी इनिशियल करियर वाज स्पेंडिंग टाइम इन थानास, ऑफिसेज। राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, रात रात भर थाने में बैठते थे। फिर टेररिस्ट अटैक हो गया। हाउ डिड यू गेट मैरिड? सॉरी, माय फादर जो somebody सबसे लकी जो ब्रेक थ्रू आपका ये था। मेरा कई लकी ब्रेक थ्रू, ये भी बहुत बड़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे ये अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन यही है कि द मैरिज। नो, आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज सेम मेरा एंड लास्ट 12 साल you know the life of a founder and ambitious founder, you know, ये हर साल बड़ा important है, ये हर साल बड़ा important है, you know, and then she made peace with it. Okay, I am happy with what I'm doing, so I totally agree. Let's talk about you know, that 8 test, you know, because I guess there is lots of depth there, and for me also it will be a great learning. So any idea to be a good idea, you are saying it should go through 8 aspect of you know, being a good idea. Can we develop good idea तो कोई भी हो सकता है, but for that idea to happen and sustain. Viable idea. एक तो है कि one time हो गया, sustain नहीं किया. For it to happen and sustain, so I talk about political acceptability. When I say political acceptability, I'm not saying acceptance by politician. It is acceptance by a decision maker. In my case, he was a politician. But many cases, sir, आपका बोर्ड है, बोर्ड हो सकता है, बॉस हो सकता है,
घर में आपकी बॉस हो सकती हैं। आप अगर अपना आइडिया पैकेज सही नहीं कर सकते तो आप रखे रहिए आइडिया, आगे जाएगा ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा यार। जिसको निर्णय लेना है उसको तो सहमत आपको करना पड़ेगा। अब आप पे निर्भर करता है हाउ डू यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू कन्विंस द पर्सन यू वांट टू कन्विंस। कब कहना है, कैसे कहना है, क्या कहना है, ये आर्ट आपको डेवलप करनी है बॉस के लिए। So that's political acceptance. Social desirability ये है कि जिसके लिए आप आइडिया लेके आ रहे हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। मतलब आप ही कन्विंस नहीं है उसके लिए बेनिफिशियल तो क्यों ला रहे हैं आइडिया। टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी बड़ी सिंपल है कि आपके आइडिया है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसे करेंगे, स्केल नहीं होगा। फाइनेंशियल वाइबिलिटी ये है कि जेब में नहीं पत्ता चल दिए कलकत्ता, आप रखे रहिए अपना आइडिया, पैसा ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ेंगे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, it is not that a priori it is to be there. You need not have money up front, but you should have an idea where I'm going to get the money from. And then if you have a good idea come in, then the money will follow. पैसा आएगा। लेकिन वो आप you can't be oblivious. ऐसे नहीं कि हम अरे आ जाएगा कहीं से, नहीं, आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रहना चाहिए। Okay, then administrative doability. आप कोई भी काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना, बिना ह्यूमन रिसोर्स को तो नहीं होगा। It's very important, necessary to have human resource. पैसा भी है, अगर सही व्यक्ति नहीं है आपके पास तो काम नहीं होगा। जुडिशियल टेनेबिलिटी, अगर आप कोई इलीगल काम करेंगे कुछ दिन तो चल जाएगा, बाद में लपट जाएगा। इमोशनल रिलेटेबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि आप समझ रहे हैं कि आपके क्लाइंट के लिए बेनिफिशियरी है, आपको समझाना है कि उसके लिए बेनिफिशियरी। दैट्स टू मी इमोशनल रिलेटेबिलिटी इज क्रिटिकल। यू लिव एंड ऑफ कोर्स अगर कोई आइडिया एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। सो दीज आर द 8 एस्पेक्ट्स व्हिच are elaborated at length in the book. How different emotional relatability with social desirability? Social desirability is your understanding it is beneficial to you. And emotional relatability is my ability to convince you that it's beneficial to you. So, social desirability is my understanding, my subjective understanding. मैं समझता हूँ आपके लिए beneficial है, आप नहीं समझते। जैसे जब पॉपुलेशन कंट्रोल का गवर्नमेंट ने किया था, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल था, गवर्नमेंट ने समझा सोशली डिजायरेबल है, बट इमोशनली रिलेटेबल नहीं बना पाए, गवर्नमेंट ही गिर गई। आप ये ले लीजिए फार्मर्स बिल जो आया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो आया था, जो विड्रॉ करना पड़ा था गवर्नमेंट को, इट इज एमिनेटली सोशली डिजायरेबल, इट इज गुड फॉर द फार्मर्स, बट द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू कन्विंस द फार्मर्स दैट इट इज, सो यू हैव टू मेक इट इमोशनल। अभी कुछ डिसिमिनेशन बिल जो चल रहा है, यू नो दैट पॉपुलेशन हर स्टेट की होनी जो हिसाब से वोटिंग डिलिमिटेशन बिल, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? See, मेरा कहना यह है कि डिलिमिटेशन होते रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, हाउ डेवास्टेटिंग कैन इट बी। आप वेरियस सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए साउथ और नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, पर कैपिटा इनकम में द सदर्न स्टेट्स आर फार अहेड ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स, फार अहेड, एंड दैट गैप इज इंक्रीजिंग बाय द डे, सो दैट इकोनॉमिक डिविजन इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सोशल डिवीजन एग्जिस्ट। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए केरला की, तमिलनाडु की, फार अहेड एज कम्पेयर्ड टू, सो देयर इज ऑलरेडी अ सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन। नाउ यू आर क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑन दैट। इट इज अ वेरी डिजास्ट्रस रेसिपी, सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज देन द वॉइसेस विल कम कि यू आर पेनलाइजिंग मी फॉर गिविंग मी लेसर नंबर ऑफ सीट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग गुड वर्क in terms of, yes, and it's not right. No, I'm not passing right value. or wrong to chalo, I'm not passing a value judgment at all. You can't be oblivious of this division. You have to work through it. You can't impose it. At some point in time, it has to be limited to. But then you can't just appear as penalizing states that are doing better in economic and social. It's like capitalism. You know, I'm a capitalist by heart. But there's a line between crony capitalism and capitalism. You've been a former secretary for education and I'm not an educator. दुनिया कहती है तुम एजुकेशन करते हो, मैं कहा नहीं, मैं अनेबल टू एजुकेशन हूँ। एटलीस्ट ये मैंने माइंड में रखा कि मैं एजुकेटर नहीं हूँ, आई एम अनेबल टू एजुकेशन। बट जितना मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ या वीसी से मिल रहा हूँ या जिस लोगों से मिल रहा हूँ, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं यू नो, एंड आई बिलीव द, इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन होता है हर जगह, ड्यू टू AI, पहली बात तो द नीड फॉर एजुकेशन और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, विल इट बी नीडेड? इफ इट नीडेड, why a certain particular person need to go to a महंगा कॉलेज और अ इंटरनेशनल कंट्री? ये मेरे स्पेस में है और ये मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट आई ऑलवेज आस्क बिकॉज मैं खुद भी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि IIT 10 साल बाद रेलिवेंट होगा?
इंटरनेशनल एजुकेशन यूके जाना या ऑस्ट्रेलिया जाना रेलिवेंट होगा? You don't have to necessarily travel to the country to be educated. I am personally of the view. You can get education anywhere now. But the ambiance of that place matters. You absorb not merely what you read, you absorb what you see and the conduct of people around you. That ambience can be created within the country also. You don't have to necessarily go to the US. I have always been advocating that instead of pushing the child to spend so much going abroad, why can't those universities set up campuses in India? Which has started happening. They've started now, which is very good. Why should they spend so much time? And Government money, gradually yeah. relented and now they're permitting it. Right. I was always of the view, get them here. Because what, technology or material that becomes available is only knowledge. You're not absorbing the environment. Environment is the key. People around you, libraries, how do you discuss with people? You become an individual by absorbing what is happening And around in fact, it's a journey, because now, like we've been there's a discussion happening that our foreign Indian campus is equivalent to what we are getting there, and I believe it's a journey. अब अभी 19 यूनिवर्सिटीज आ गई है, it will अभी evolve. वो छोटे छोटे कैंपस है. आप वो छोड़ दीजिए फॉर इंडिया की यूनिवर्सिटीज आई मीन आई कीप गोइंग टू दिस कैंपसेस द आईआईएम्स द आईएसबीस oh wonderful campus Right. wonderful ISB is like amazing, yeah. I mean I've been to ISB Yeah. both Mohali and the Hyderabad campus. Excellent. Yeah. There's nothing wrong with it. Let others universities also come, let them compete, let them learn from each other. Right. वो improve करेंगे भी. अब वो ये समझे कि हार्वर्ड वाला एटमॉस्फेयर अगले साल यहाँ आ जाएगा, वो नहीं आएगा. It's a journey, right. It will take time. It will take time. But if you don't open your doors just because at some point in time it will be lesser than original Harvard, तो शुरुआत ही नहीं होगी. अरे भाई शुरुआत कर लो यार. I'm glad they're doing it. So, and in fact, one of the reason I've been looking inward, because we were always looking outward. I still believe accommodation में इंडिया में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, सस्टेनेबल होना और मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में आप खाली accommodation ही आप खाना भी दे रहे हो, फिर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, and then there are lots of nuances. But I also believe that what been happening in UK, what happened in US, it has to happen in India. नहीं होगा. There are 43 million students. होगा. Demand supply जैसे है वो है, and that's why we pick the पहले इंटरनेट जहाँ पे इसे फाइनेंशियली वाइबल करते हैं, एंड देन बिल्कुल होगा. हर आइडिया सही टाइम पे सही जगह एक तरीके से बनता See, है. you are in the right space. The expansion will depend on how it evolves. But the space is good. Yeah. Because that's the need of the hour. What you are doing is the need of the hour. Need of the hour. You are not trying to create a demand. Demand exists. Demand exists, and supply takes time to create, and you need to. वो ठीक है. धीरे धीरे होगा. वो भी धीरे धीरे होगा. Right. So back to that question, that education is relevant, yes, but now the form and shape of education needs to be changed, which is more experiential learning. In the era of AI, why someone need to go to a degree or a college which they can learn at YouTube at free of cost? No, so you have to understand the limitation of AI. AI has a phenomenal potential, phenomenal, but there are limitations. Because ultimately, you have to connect with human beings. That human essence will never come either through AI or otherwise. आप कहते हो कि जो 800 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड एक थॉट है मेरा, एंड विजडम, बॉर्डर विजडम है कि दे विल बी ह्यूमनॉइड टू ईच वन ऑफ अस. बिकॉज आज हम बात नहीं करना चाहते, हम मैसेज करना चाहते हैं, हम अपने घर सर्वाइकल हो रहा है बिकॉज हम अपने में, मी एंड माई फोन, एंड आप अल्फा या जेनजी को देखोगे, दे इनटू गेमिंग. आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बट दे आर नॉट coming out. I have a 5.5 year daughter. Correct. Phones है, TVs है, गेमिंग है, वो अपने एक इको चैम्बर में चल रहे हैं. तो जब 800 करोड़ लोग, जैसे फ़ोन हो गया ना सबके पहले किसी को फ़ोन, अब तो फ़ोन हो गया, बेस्ट फ्रेंड क्या है, सबका फ़ोन है, राइट. उस एनवायरनमेंट में एक तो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन अभी कम हो गई, इवन एम्पैथी ख़त्म हो गई, राइट. अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं एज 15 साल का हो या 18 साल को, जहाँ पे मैंने बाहर खेला, मुझे माँ बाप ने भी, गलती नहीं उनकी भी, माँ बाप ने फ़ोन पकड़ा दिया, खाना खा लिया, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे. अब उसने, माँ बाप ने फ़ोन दे दिया, वो फ़ोन पे लग गए, अब वो बाहर नहीं जा रहे. अब बाहर नहीं जाते, उन्हें धूप तो ऐसे लगता है कि बच्चा ख़राब हो जाएगा. एक बच्चा है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, तो लगता भी है यार बीमार मत करो, घर पे रखो, एंड देन दे आर लाइक कि स्पोर्ट्स तो खेलना ही नहीं है. अच्छा, फिर वो गेमिंग से पैसा भी बन रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम ऐसा बन रहा है ना, तो लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नहीं, और लोगों की जरूरत होगी तो वो आज, तो वी वर 400 पीपल टीम, एंड आई एम अ बिग फर्म बिलीवर कि यार आई नीड गुड पीपल अराउंड, बट अब जब मार्केट्स आर इंसेंटिवाइजिंग
layoffs and less people, you know, एक टाइम में बोलते हैं 400 लोग की टीम है, तो कहते हैं अच्छा, अब मैं जब कुछ इवॉल्व फाउंडर से बैठता हूँ या इन्वेस्टर बैठता हूँ या मैं 400 लोग, दे आर लाइक, मतलब उनकी आंखों में दिख जाता है, तो इनएफिशिएंट है. See, let's just look at the evolution of technology. Please. When computers came for the first time, everyone thought that everyone will lose the job. Banking industry में तो इतनी strike हुई. Right. But I don't think many people lost their jobs. They recalibrated and used it. मेरा reading AI के बारे में भी है. There will be an impact in terms of reduction of manpower in certain areas. So a lot of jobs that are being done by human beings will then be done by AI. You don't have necessarily have a human interface to do a particular thing which is of a routine nature, which can be Repetitive and redundant, logically automated, and it would be done by AI. But still there will be a lot of human work that will be required. For sure. So for example, in your whatever little I've understood of your profession now and your company now, AI will replace a few things, but your interface with say foreign missions, how will AI replace that? बट फिर मुझे 50 लोग नहीं चाहिए ना. हाँ नहीं, 4 लोग चाहिए. आपको फिर दूसरी चीज के लिए चाहिए होगा. See, the point is when computers came, everyone thought lose the job. They got employed elsewhere. That's how technology change does. of job change. Absolutely. The nature of job will change. The challenge is, am I equipping myself Right. for the new world? People and not learning. Yes. If we don't do that and we continue to be what we are, then we'll be in trouble. But if we evolve, so किसने सोचा था कि India will become a software backup for the US? Right. अब वो भी खत्म हो जाएगा, बहुत काम AI ले लेगा. New things will evolve. That's our thought process. That should be our thought process in terms of what next. If we are oblivious, if we ignore it, then we will be in trouble. But I am a great believer that technology is a great enabler, Yeah. great facilitator. Yeah. It reduces drudgery phenomenally. It's great. It's a value creator. So you have to look at it that way. And in any case, it is coming whether you like it or not. So Yes. I have to answer this question. Right. Am I equipping myself for the changed environment? That's the question we should. I don't have a ready answer. Some areas I can talk about, but there would be other areas. I mean, I'm not an expert. People who are in it can probably delve upon it and come up with solutions. But ignoring it will be disastrous. So it is there. AI is coming. Let us understand the implications. Like whichever university I go, I tell them set up a cell to understand how AI can be leveraged. That's the first thing you should. Don't scare everybody. Adopt, ये मेरा जॉब ले लेगा. लेगा तो ले ही लेगा. आप क्या कर लेंगे उसका? In fact, if you are not aware, then तो पता भी नहीं चलेगा. Absolutely. So आँख खोलिए. ये एक आ रहा है. आप उसको यूज कीजिए जितना कर लीजिए. By closing your eyes like an ostrich or shoving it in the sand, you are not going to be held. So face it and try and make the best out of it. मेरा बेस्ट इंटरेस्ट. यू बीन अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन. आई एम नॉट एजुकेटर. मुझे बहुत सूडो अंडरस्टैंड है मतलब मेरा भी एजुकेटर नहीं हूँ. माई एक्सपोजर टू एजुकेशन वॉज ओनली 20 months as secretary school education. In fact, I jokingly tell, when I was doing coal की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. So they were trying to locate the most uneducated, illiterate civil servant to become secretary education, school education. They found that in Mr. Anil Swarup. I had no experience in education यार. मैं बना दिया. अब लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हो गए, जो कि मैं नहीं हूँ. भाई वो 20 महीने हम क्या सीख लेंगे? So it is wrong to call me an educator or an expert in education. I may have understood a few things in those 20 months. Let's talk about that 20 months of experience, which you got exposure, I didn't. Okay. You know, and my audience want to understand, or I want to understand personally. I understand international education better than Indian education. जब तक मैंने NEP नहीं पढ़ा, और भी मुझे ऊपर से पढ़ा है मैंने, जब तक इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस के बारे में नहीं पढ़ा, तो मुझे UCG एंड UGC राइट, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वर्सेस गिफ्ट सिटी, ये सब अभी भी मुझे ऊपर से सूडो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ही लेंसेज वाली अंडरस्टैंडिंग है. बट अगेन नाउ एज आई बिकम मोर एम्बिशियस, मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आने लगा है कि यूनिवर्सिटी लिविंग कैन ऑल्सो बी यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग. मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट आने लगा है माइंड में, यार हो सकता है. जाने की जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी. नहीं यूनिवर्सिटी लिविंग कैन बी यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग. मतलब हम एक यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं. बड़ा सिंपल है. उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, टोटली डिफरेंट. लाइक एट्रीब्यूट्स आर कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एजुकेशन, यू हैव टू run an institution. It's more management than anything else. Get professors. That's a different attribute altogether. So I would not advise. I mean, you can do it. No, I mean, but where you are, there's so much space available here. There are more and more international universities coming in. Can you provide this accommodation?
Right. That's your area. Right. Why do you want to get into education? It requires a different set of attributes altogether. So Understanding. you're 20, no, absolutely. You know, as I'm saying, thought आए, and I believe in manifestation. I नहीं believe वैसे in तो unique आजकल things. हलवाई लोगों ने भी यूनिवर्सिटी खोल ली है, जूते बनाने ने यूनिवर्सिटी खोल ली है, सिगरेट बनाने वालों ने यूनिवर्सिटी, पान मसाला वालों ने एजुकेशन में आ गए, सब आ सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट दैट दे कांट. और वो अच्छा आपको पता है क्यों बनता है? अब वो तो ये है, उसने कहा कि इतना पैसा सबको है. पान मसाला खिला दिया, उसने कहा कि अब नर्क में कन्विंस हो गया तो थोड़ा पुण्य कर लें, शायद स्वर्ग मिल जाए. और फिर वो मैंने सुना है कि हर प्रकार के लोग हैं, तो वो आप भी जा सकते हैं. मतलब यू आर अकाउंटेड अनअकाउंटेड भी होता है. अब वो मैंने Grant देखा, मिलती है, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ ये tax free है. विजिबल है कि वो पान मसाला बनाता ही था. हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है. गलत सही बनाता, मैं नहीं कह रहा हूँ. पान मसाला तो बनाता था, राइट. खूब उसने कराया लोगों का नुकसान, अब वो बच्चों को पढ़ा रहा है. तो कोई भी बन सकता है, तो आप भी कर सकते हैं. लेकिन आप वो काम छोड़ दिए किसी और पर. आप वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें बहुत स्कोप है, इसको करिए आप. So your 20 months of experience बिना मैं एक्चुअली स्कूल एजुकेशन में था, तो यूनिवर्सिटी का education. हाँ, वो तो बड़ा बढ़िया है भाई. जब मैं कोल सेक्रेटरी बना, तो मुझे तो उस समय सब स्कैम हो रहे थे. तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर पूछा, यार ये सेक्टर कैसा है? उसने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? समझ में आ गया. फिर 2 साल में मैंने कुछ सॉर्ट आउट किया गैंग्स ऑफ वासेपुर को, सब कोल वोल ठीक हो गया. तो मेरा जब एजुकेशन हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ. गेटिंग आउट ऑफ. कौन सी मूवी देखी आपने फिर एजुकेशन के लिए? मैंने कोई मूवी भी नहीं देखी. मैं मूवी पहले मैं बहुत देखता था, इधर बंद कर दी थी मैंने. तो मैं सोचा कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ द डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड टू माई अटमोस्ट हॉरर आई फाउंड दैट द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर वर्स देन माफिया ऑफ कोल. क्योंकि कोल में तो माफिया ओवरग्राउंड था, माइनिंग अंडरग्राउंड थी. स्कूल एजुकेशन सब माफिया अंडरग्राउंड है. आई हैव रिटन अ फुल चैप्टर ऑन माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन. अमेजिंग. Which book is this? This is the first book. मैं वो नहीं पढ़ी. Not just a civil servant. I've spoken about mafia school education at length. कि कैसा तगड़ा माफिया है यहाँ पर. मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, समाज का चौपट मार रहे हैं. आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे हैं. मैं SDM था देवरिया डिस्ट्रिक्ट में. उस समय कुशीनगर अलग जिला नहीं बना था वहाँ से. तो एक दिन मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, सर आप चलिए आज आपको एक नज़ारा दिखाने. बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे. मैंने चलो. मैं गया सुबह. जैसी मेरी जीप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंची, लोग खिड़की से कूद के भागे. मैंने ये क्या यार, तो एग्जामिनेशन. बोले सर ये सर नकल कराने आए थे, आप आ गए इसलिए भाग रहे हैं. अब देखिए, फिर अगले दिन हमसे कहता है कि सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे. क्यों? बोला सर आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाते. ठीक है, हम सुबह चले गए. वहाँ पर बड़ा शांति थी. मैंने कहा तो ठीक ठाक चल रहा है एग्ज़ाम. बोले नहीं सर, वो अभी पर्चा खुला है. वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना सर, वो वहाँ पे बना रहे हैं उसका. जब आएगा तो हमें नकल कराएंगे आके. देन आई गॉट टू नो कि यूपी में, आई डोंट अबाउट अदर स्टेट्स, मुझे बिहार में सुनने में आया, ये तो मैंने खुद देखा, कि ठेके पे उठते थे कॉलेजेस नकल कराने के लिए. बच्चों से एक रेट लिया जाता था, वो पैसा किसी और को दिया जाता था और नकल कराई जाती थी. क्या हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को? अब आज की मुझे नहीं पता क्या है. आई एम नॉट. This was when in 20 like. दिस इज इन 1984 85. मैं पैदा हुआ. 85 के एग्जाम. आई हैव रिटन दैट इन माई बुक. सो और भी हैं. मतलब दिस इज वन ऑफ द माफियाज. द बिगेस्ट माफिया इज B.Ed और D.LEd कॉलेजेस. मतलब ही नहीं आपको डिग्री दे देंगे भाई. और जब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया तो वन ऑफ माई वेरी ब्राइट ऑफिसर्स ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द IAS. इतने शातिर हैं वो लोग. तो आई हैव रिटन अबाउट दैट. था. बहुत डीप रूटेड है. ईटिंग इनटू एसेंशियल्स, ये मैं तो आपने 1-2 बताए, कई सारे हैं. सो दैट इज व्हाट स्कूल एजुकेशन माफिया इज. कितना वी आर प्लेइंग विद द फ्यूचर. फिर किसी ने मुझसे पूछा, मैंने भी रिफ्लेक्ट किया कि यार ये इतना महत्वपूर्ण है, लोग इसका ध्यान क्यों नहीं देते. तो मैंने कहा कि भाई देखो, जिस नेता को निर्णय लेना है इनके बारे में, वो कल के लिए चिंतित है. एजुकेशन वाले तो 10 साल बाद मालूम पड़ेगा. आप देखिए, बच्चा स्कूल से निकल आता है, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हो, ना लिख पाता है ना पढ़ पाता है. हम कर क्या रहे हैं? आई मीन मेरे पूरे 38 साल के करियर में हर जॉब में मैं अपने आप को रिडेंडेंट बना देता था. कोल में मेरा कोई भूमिका नहीं थी. सिस्टम्स बना दिए थे, वो जो उस समय बने थे आज 10 साल बाद भी चल रहे हैं. आई यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम्स, मेक माई सेल्फ रिडेंडेंट. मेरी जरूरत ही नहीं वहाँ पर. एजुकेशन ऐसा सेक्टर था जहाँ मुझे लगता था मुझे और रहना चाहिए था, क्योंकि समस्याएं इतनी गंभीर हैं. यू कांट सॉर्ट देम आउट ईजिली. मेरा सौभाग्य था कि मेरे मंत्री बहुत अच्छे थे, प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत सुनते थे, करते थे. हम लोगों ने कोशिश भी की. मैं भी हटा, फिर उनको भी हटा दिया. अब हिस्ट्री जोग्राफी कर रहे हैं लोग, सब ठीक ठाक कर रहे हैं देश की. But how you make peace with yourself when you
आपने देख लिया है कि इतना डीप रूटेड हो रहा है? नहीं, बड़ा सिंपल है यार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने पूछी। देखिए ऐसा है, शुरू में बहुत ही विचलित रहता था, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उन चीज़ के लिए क्यों परेशान होता हूँ जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर ऐसे सब सोचे एंड देन यू से एवरीथिंग इट्स अबाउट इंडिविजुअल एंड इट्स एवरीथिंग विद इन, अगर मैं सोचूं, जैसे आपने बोला एक थॉट आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग नहीं बनाते यार, बहुत चीज़ें इधर उधर है, एकदम आपने बोला एजुकेशन में इतने इतने कुछ हो रहा है, तो मेरे को नेचुरल थॉट आ रहा है यार कैन आई बी चेंज? आई डोंट नो। You don't have to be changed. The change has to begin with you. If you focus on what you can, that can will grow. But listen to it, पूरा सुन लीजिए। please. If you focus on what you can, that can will grow. But if you waste your time, what you can't, you will not have time to do what you can. And if you can't do what you can, then you will grow in confidence, and someday you will start doing something which you can't. But the process has to begin with you. टाइम इज लिमिटेड। आप देखिए, मैंने अपने जीवन में बाद में बहुत सारी चीजें की जो मैं शुरू में समझता था मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब की जब लोग मुझे पहचानने लगे, जानने लगे, जब मैं वो चीज कर सका जो मैं कर सकता था। कोल में जो हमने किया, वेरी डीप, कोल में क्या किया, कोल में भी वही बवाल था पूरा, बट तब तक मेरी रेपुटेशन ये बन गई थी कि ये कर देगा, तभी तो पिक किया मुझे कोल सेक्रेटरी, और मैंने किया। शायद इनिशियल वाला अनिल स्वरूप नहीं कर पाता, लेकिन वो अनिल स्वरूप तब बन पाया जब मैं वो चीज़ कर पाया जो कि मैं कर सकता था, और मैं इस बात के लिए परेशान नहीं था जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक किस्सा लिखा अपनी किताब में, वेरी नाइस, वेरी डीप। जब मैं पुलिस में था इसमें आने से पहले तो मेरा एक बैचमेट था, वो आया मुझसे कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। मैंने क्या हो गया? बोले बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने कहा दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से क्या कम हो जाएंगे? नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। हमने कहा मैं सहमत हूँ तुमसे, ये चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है, लेकिन रात की नींद तो उसी चीज़ के लिए हराम करो जिसका तुम कुछ कर सकते हो। तो काफ़ी देर बहस चली, वो सहमत हो गए, बोला हाँ बॉस मेरे रात को ना सोने से तो कम नहीं हुआ, चला गया। फिर आए 3 महीने बाद, कहता बॉस रात को नींद नहीं आ रही। अब क्या हो गया? पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप कम हो गए बिना तुम्हारे इंटरवेंशन। कहता बॉस देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। मैंने उससे कहा रात को सोचो अपने आप कम हो जाएगी। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप उस चीज के लिए क्यों परेशान हैं? मैं नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि पहले आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, दूसरों का आप में कॉन्फिडेंस हो, तब वो जो दायरा है जो आप कर रहे हैं वो बढ़ेगा। आप पहले ही कूद गए वहां पर तो आप पिट के आ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट डू इट, बट इट हैज टू बी सीक्वेंस्ड अप्रोप्रिएटली एंड स्टेप बाय स्टेप। और अक्सर मैं मजाक में कहता हूँ यार देखो, ऐसा आप सिविल सर्विस में आए हो ना, तो रिवोल्यूशनरी मत बनो, यू गो स्टेप बाय स्टेप। और रिवोल्यूशनरी बनना है तो एक झाड़ू उठा के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। सो द पॉइंट ये है कि आप क्या चाह रहे हो जीवन में। Otherwise, you will feel frustrated. I've seen so many officers who get frustrated because they are attempting to do which they can't do, and consequently they don't have time to do what. जैसे कई IAS ऑफिसर जैसे मुझसे कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार तुम नेताओं को इतनी गाली देते हो, मैं भी देता था। किसी नेता ने तुमसे कहा ऑफिस लेट आओ? किसी नेता ने तुमसे कहा कि अपना ऑफिस गंदा रखो? किसी नेता ने तुमसे कहा कि जो आए तुमसे मिलने उसे बदतमीजी से बोलो? किसी नेता ने कहा है तुमसे फाइल पे बैठ जाओ? कितनी सारी चीज़ें नेता कहीं है ही नहीं यार। तुम वो करो तो नेता फिर तुमसे करेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं तो बताता हूँ कि सेकंड हाफ में किसी नेता ने मुझसे कोई गलत काम कहा ही नहीं, नेता तो वही है। और ऐसे नहीं मुझे खराब पोस्टिंग मिल गई उसकी वजह से, पोस्टिंग भी मुझे अच्छी मिल गई। लोग कहते ना कि क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए पोस्टिंग नहीं मिली। अरे व्हाट नॉनसेंस यार। आप अगर अच्छे अधिकारी हो, आज की तारीख में भी अच्छे अधिकारियों की तलाश है, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। अगर एफिशिएंट नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा, तब आपकी कोई वक्त नहीं। आप ऑनेस्टी लेके घूमिए इधर उधर। एंड दैट वो इनएफिशिएंट ऑनेस्टी कैन बी अ वे टू हाइड योर इनएफिशिएंसी। अब आई डोंट थिंक दैट इज राइट। कैन बी, आई मीन सम मे यूज इट, बट सम पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑनेस्टी इज द बिगनिंग भाई। ऑनेस्ट तो होना ही है। मैं बार बार इस चीज कहता हूँ, आप ऑनेस्ट होकर किसी पे एहसान कर रहे हैं क्या? आपको ऑनेस्ट तो होना ही है भाई, किस बात की चर्चा? तो आपने आज तक कभी आप नोइंगली कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत सारी गलतियां की। मेरी किताब पढ़ी उसमें सब गलतियां हैं, फेलियर्स हैं, गलतियां, खूब गलतियां की, उन्हीं से सीखता रहा मैं। बट देन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी अपराइट एंड यू आर अपराइट एंड आपने नोइंगली की गलती करी, यू नो, एंड आप सीख रहे हो, बट पीपल बाउंस ऑन दैट। हाँ बिल्कुल बाउंस किए। तो कैसे? कुछ नहीं, शुरू में परेशान होते, बाद में कहते ठीक है ठीक करेंगे सर। अब मैं आपको, ये स्कूलिंग से था। देखिए मैंने
प्रयास करके जब मैं कक्षा 12 के बाद मेरे पास साइंस साइट थी, तो ना 5 सेंटेंस अंग्रेजी को बोल पाता था, ना हिंदी को बोल पाता था, ना लिख पाता था। सेम तो अभी मैंने खूब, आई हैव अ सेशन विच आई टेक ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने अपनी कैसे सुधारी, मैं लोगों को बताता हूँ ऐसे सुधार लो। मैंने अपनी सुधारी कम्युनिकेशन स्किल्स। आई बिकेम ए डिबेटर फॉर माई यूनिवर्सिटी। तो मैं जाता था पूरे देश में, कॉलेजेस में जाता था डिबेट के लिए। IIT कानपुर में कल्चरल फेस्टिवल था, उसमें डिबेट भी थी, मैं गया। एक दिन पहले म्यूज़िक कॉम्पिटिशन था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत गा लेते, मैंने नाम दे दिया बिना कुछ प्रैक्टिस किए। और 1,500 बच्चे बैठे थे तंबू में, मेरा नाम अनाउंस हुआ, अनिल स्वरूप, सबने तालियां बजाई, मैं गया, गाना शुरू कर दिया, गलत सुर पकड़ लिया। 10-15 सेकंड में मुझे बू करके बाहर निकाल दिया बच्चों ने, बू। अब देखिए आप, मेरे समझ भी नहीं आ रहा था कुर्सी के नीचे घुस जाऊँ, कहाँ घुस जाऊँ। हमने डिसाइड किया अगले दिन ही भाग लेंगे। मेरे एक सीनियर थे, वो बोले बॉस सुना कल आप डिबेट में भाग नहीं रहे। मैंने कहा कौन जाएगा यार उनके सामने। बोले आप 2 गलतियाँ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज़ किए वो गाना चले गए। और दूसरा, जहाँ आपने रियाज़ किया वहाँ जा नहीं रहे। ये कहाँ का तरीका है? आप गलती से सीखिए, आपने किया, आगे से बिना रियाज़ के मत जाइए। ये करीब 1 घंटे बहस चली, उसके बाद मैं कन्विंस हो गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा कल डिबेट में भाग लेंगे। मेरा नाम अनाउंस हुआ, अनिल स्वरूप। वो बोला अरे गायक आ गया। लेकिन आई हैड ओवरकम माई फियर्स। I went and spoke and won the first prize in the national debating competition. So I realized committing mistake is not a crime. But if you can learn from mistakes, nothing like it. So यही नहीं है। आप मेरी ethical dilemmas of civil servant पढ़िए, जिन्हें कितनी गलतियां की मैंने, लेकिन एक बात है, मैंने वो गलती दोबारा नहीं की। I kept learning. Why are you writing so many books? यार शुरू में मैं, जैसे मैंने बताया, मैं 100 किताब पढ़ता था, तो मेरी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी। आई डेंट हैव टू मेनी डिज़ायर्स इन लाइफ। एक डिज़ायर थी कि मैं एक किताब मेरे नाम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने लिखना शुरू किया। पहली किताब में 8 साल लगे लिखने में, और रिटायरमेंट के बाद पब्लिश हुई, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट। तो पहली किताब तो ऐसे अवतरित हुई। दूसरी किताब पे मैं एथिक्स पे भाषण देता था, तो किसी ने कहा यार आप इसको अपने लिख डालो। तो मैंने लिखी, तब मुझे चस्का लग गया लिखने का, बड़ा मज़ा आया उसे लिख के। तीसरी किताब, थोड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आई वॉज डाउन विथ 3rd stroke 4th stage कैंसर। तो मैं चल वल पाता नहीं था, थक जाता था बैठ के, तो 15-15 मिनट बैठ के लैपटॉप पे अपना लिखता था। तीसरी किताब लिखी, नो मोर ए सिविल सर्वेंट। तब मुझे पता नहीं था कि मैं जीवित रहूँगा क्या नहीं, मैंने लिख डालो इसका जो आ रहा है दिमाग में। ये तो 3 किताबों में मैंने कहा ख़त्म हो गया किस्सा। चौथी किताब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं डायरी लिखता था जब मैं ऑफिस में था, जब सर्विस में था, रोज़ एक पन्ना लिखता था। इधर ऐसे डायरी के पन्ने में पलट रहा था, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आया, वो पढ़ा मैंने, यार तो मज़ेदार है यार। फिर मैंने लिखी एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन, क्योंकि उसमें कई पॉलिटिशियंस के साथ मेरा संपर्क आया, मैंने काम किया, बहुत मज़ा आया लिखने में। 5वीं किताब जो है, यू कैन मेक इट हैपन, इज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सजेशन रिक्वेस्ट बाई मैनी। क्योंकि आजकल जो मैं भाषण देता हूँ कॉलेजेस में, CEOs को, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, उनको मैं ये बताता हूँ कि आपका सर्कमस्टांसेस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को सुधारें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन मेक इट हैपन। तो मैं बोलता था 1-1.5 घंटा, तो लोगों ने कहा यार 1.5 घंटे पूरी बात बनती नहीं है, आप डिटेल में लिखिए। अब यह है कि अब मज़ा आने लगा मुझे, किताब लिखने में मज़ा आने लगा। पहले तो थोड़ा, अब मैं 6ठी किताब लिख रहा हूँ, करप्शन इन गवर्नेंस, वेयर आई एम टचिंग अपॉन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट। सो वो आप जैसा है ना, रिटायरमेंट रिटायर, आपको मज़ा आता है। आजकल तुम फ्री हूँ ना, मैं जो मज़ा आता करता हूँ। जैसे फ्री तो नहीं, आप 20 दिन ट्रैवल कर रहे हो। यू नो, आई तो टेल पीपल दैट यार कुछ कर लो, लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है। यू नो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल या वाकया कि जो आपको बताने में मज़ा आता है। देखिए ऐसा ना कि ये जो मैंने चौथी बुक लिखी है एनकाउंटर्स पॉलिटिशियन, वो किस इंस्टेंस पे हुई वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस ये था कि मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस था कल्याण सिंह जी का, वो चीफ मिनिस्टर थे, और मेरा काम बेसिकली ये था, ये 1991 की बता रहा हूँ, कि मैं सुबह सुबह उनको जाके पेपर क्लिपिंग्स दिखाता था, और वो जो बताते थे उसको फिर फॉलोअप करता था। तो इस पर्टिकुलर डे जब मैं उनके घर पे पहुंचा, तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी और DGP पहले से ही खड़े थे, और चीफ मिनिस्टर थोड़े नाराज़ थे। नाराज़ इस बात पे थे कि उस समय इटावा में बाई इलेक्शन होना था, और उनकी 7 मीटिंग्स लगा दी थी, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा किसने लगा दी 7 मीटिंग, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल करो। तो चीफ सेक्रेटरी और DGP दोनों उनसे हाँ में हाँ मिला के बोले, हाँ सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप साथ नहीं कर पाएंगे। मैं साइड में खड़ा था चीफ सेक्रेटरी के, नया बना था तभी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे कहा कल्याण सिंह जी से, मैंने कहा सर वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है,
लेकिन सर लास्ट मोमेंट पे आप इसको कैंसिल ना करें। मैं कुछ दिनों पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो जब सीएम आते सर बड़ी तैयारियां होती थी, लोगों में आशाएं अपेक्षाएं होती थी, तो डिसअपॉइंटमेंट होगा सर। तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, क्या मैं जा सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं हुआ। मैंने कहा सर मेरा तो राय है, बाकी आप जैसा ठीक समझें, और जो लोग कोनी मार। फिर अगले 15 सेकंड कोई नहीं बोला, बिल्कुल टेंशन था कमरे में। 15 सेकंड के बाद फिर मेरी तरफ घूमे, कहते हैं हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी एकदम हाथ नीचे के, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा देखिए मजे की बात क्या है, मैं इसको भूल गया था। जब कल्याण सिंह दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो मेरी आदत, मैं किसी से मिलने नहीं जाता था। उनका फोन आया मेरे पास, अनिल तुम मिलने नहीं आए, थोड़ा सा नाराज थे। मैंने कहा सर अभी आप व्यस्त होंगे, अभी आपने ओथ ली है, नहीं तुम आ जाओ अभी। मैं चला गया। मैं बैठे हुए थे कमरे में, घुसा, जैसे ही घुसा मैं कमरे में, कहते हैं मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया था। मैंने ठीक है। बोले पूछोगे नहीं क्यों नहीं बना सकते? मैंने कहा आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बैठो बताता हूँ। मैं बैठ गया। बोले तुम्हें ये याद है? उनको याद था। मैंने अपनी डायरी में ये इंस्टेंस उस दिन लिखा है जिस दिन वो उन्होंने मुझे याद दिलाया, जिस दिन हुआ था नहीं लिखा है। तो जब मैंने किताब में ये इंस्टेंस पढ़ा तब मैंने कहा यार ये तो मजेदार है। और फिर मैंने डायरी पलटनी शुरू की, सब उसी दिन निकल आई, फटाफट लिखी वो किताब मैंने। मेरे सब इंस्टेंसेस उसी में थे, मतलब उसमें पूरे नहीं लिखे थे, लेकिन उसको पढ़ के मुझे याद आ जा रहा था अच्छा ये हुआ था। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। एक से एक बढ़िया इंसिडेंस। आई हैड ग्रेट टाइम एज अ सिविल सर्वेंट विद पॉलिटिशियंस। You enjoy the life. You enjoy observation करके आप मजा लेना चाहते हो। मैंने जीवन में सीखा कि पास तो निबट गया, उसका मैं बिगाड़ नहीं सकता। वो सरकारें ही सिर्फ हिस्ट्री बदलती हैं, मैं तो नहीं बदल सकता। जो है फ्यूचर का पता नहीं यार। ये मोमेंट है, इसे एंजॉय करो यार। ये कैंसर वाले एपिसोड का हुआ? ये हुआ 2021 में। 2021 में वो डिटेक्ट हुआ। तब भी मेरे वाइफ और हम बैठे थे, जब फ़ोन आया मेरे पास तो हमने कहा ठीक है यार, जो भी होगा, जितने दिन बचे उसी में मज़ा करेंगे। तो वी टुक इट वेरी पॉजिटिव। वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आप, वो रात तो नहीं होगी, एकदम सपना आया होगा, बट आई मीन समवन हु इज़ ऑलवेज लाइक डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट, एंड जब आप खुद ऐसे होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी लोगों से ऐसी हो जाती है, यू नो। शुरू में थी, बट बाद में वो कब चेंज होना वो बड़ा मुश्किल है। बड़ा आई डोंट रिमेंबर कब हुआ। देखिए मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की, वो भी मैंने इस किताब में लिखा, यू कैन मेक इट हैपन। योर हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। टोटली, है ना? यस एब्सोल्युटली। तो आप जितना कम कर लेंगे उतना ही हैप्पी रहेंगे। इनफैक्ट वो बोनस मिलेगा। बाकी इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन इज व्हाट मेक पीपल अनहैप्पी, एंड व्हाट वी कॉल इट, जब एक्सपेक्टेशन होती है ना तभी कॉम्प्लिकेशन आती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आती। Right, done sir. And that's a wrap on today's conversation. Mr. Anil Swaroop. We talk about a lot of amazing things today. Honestly, bias and how to actually lead people and what it takes to get things done inside a system that doesn't always make it easy. What stayed with me is this. He never made it sound big. He just did the work, sat with people, had chai, tried to understand what was going on with them before asking anything of them. And that line about expectation, the more you want, the less happy you feel. I think a lot about us need to talk about that one. That was a very real conversation, and I hope it gave you something to think over as well. If it did, pass it on, hit like, follow and subscribe button, and we will see you in the next one. Thank you.